एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਇ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ। ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਗੇ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ। ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ। ਹਾਰ ਬਣਿਓ ਤੋ ਬਾਰੀ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ।
का नाहि हमारे। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। हर प्रभ तेरे केते गणो असंख, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो
हजरत मोहम्मद साहब एक गांव में से गुजर रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब एक गांव में से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और वो सब पत्थर मार रहे हैं एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब जब भीड़ में शामिल हुए देखने के लिए कि किसे पत्थर मार रहे हैं, क्या देखते हैं कि सामने एक औरत है और सारा गांव मिलकर उसे पत्थर मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी ने हजरत मोहम्मद साहब के हाथ में भी पत्थर दे दिया कि आप भी मारो, ये पंचायत का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने सबको रोका कि 1 मिनट रुक जाओ। सब रुक गए। कहने लगा मैं पत्थर मारूं उसके पहले मुझे बताओ तो सही कि इस औरत ने किया क्या है, गुनाह क्या है इसका। तो बताया गया कि ये औरत इसी गांव में पली बड़ी, यहीं पे उसका जन्म हुआ और ये वेश्यालय चलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसवा है जी, इसलिए इसे पंचायत ने सजा दी है कि इसे पत्थर मार मार के मार दो। हजरत मोहम्मद साहब ने सारी घटना बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहने लगे मेरी एक बात का जवाब दो सब। ये औरत इसी गांव में पली बड़ी है, इसी गांव में इसका जन्म हुआ, इसी गांव में ये वेश्यालय चलाती है, इसका धंधा चलता कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी गांव में अगर इसका वेश्यालय है तो इसका धंधा चलता कैसे है? मतलब यहीं के लोग इसके पास भी जाते होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले उन लोगों को भी पकड़ कर लाओ जो इसके पास जाते हैं, वो भी बराबर के पापी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा गांव शामिल है इसमें, अकेली इसे क्यों मारा जा रहा है? या तो उन सबको भी पत्थरों से मारो या तो फिर उसे भी माफ कर दो और उन्हें भी माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना साथ संगत जी। हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि अकेली तो ये वेश्यालय नहीं चला सकती ना, जब तक इसके पास ग्राहक नहीं आएंगे। तो गांव वाले ही इसके पास जाते हैं, उन गांव वालों को पकड़ कर लाओ, उन्हें भी पत्थर मार के मार दो, ये सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए। सबकी आंखें झुक गईं। फिर हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे या तो सबको सजा दो या सबको माफ कर दो, इस औरत को भी माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं साथ संगत जी कि अगर चाहते हो गुरु तुम्हारे गुनाह बख्श दे, उम्मीद रखते हो गुरु नानक से कि वो हमारे गुनाह बख्श देगा, तो तुम्हें भी दूसरों के गुनाह बख्शने होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं हो सकता हम दूसरों को माफ ना करें और यहाँ पर आकर उम्मीद रखें कि वो हमारे गुनाह माफ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बख्शाने का शब्द है, आज बख्शाने का शब्द। पंक्तियां कमाल की हैं। ये गुरु नानक पातशाह उच्चारण कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कि जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरे गुनाह, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मेरे गुनाह इतने हैं कि जैसे समुद्र में पानी उतने मेरे गुनाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो गुनाह करके भी अपने को गुनहगार नहीं मानते। गुरु नानक जो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि जेता समुद्र सागर नीर पर्या तेते औगण हमारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जेता समुद्र सागर नीर पर्या, जेता समुद्र सागर नीर पर्या, तेते औगण
डूब दे पत्थर तारे, तारे दया करो किछ मेरे पाओ, दया करो किछ मेरे पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान गुनहगार है, चाहे वो माने चाहे ना माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानबूझ के जो हम गुनाह करते हैं वो तो करते ही हैं, अनजाने में हम इतने गुनाह करते हैं, पता तब चलता है जब ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक, ये समझने के लिए कि गुनाह बख्शाने कितने जरूरी हैं, कितने जरूरी है। ये बड़ी ही लंबी घटना है, अगर मैं पूरी घटना लेने लगूं तो 4-5 दिन केवल इस घटना को सुनाने में लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास शॉर्ट में ले रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकरण के हिसाब से जो बात चाहिए वो ले लेते हैं। गुरु नानक पातशाह जब राजा शिवनाभ के पास पहुंचे, ये बहुत लंबी घटना है, सन्मुख गया वहां पर, उसने राजा शिवनाभ उनसे प्रभावित हुआ, उसने पूछा गुरु कौन है? गुरु नानक पातशाह। कई सालों तक इंतजार करता रहा, कईयों की परीक्षा लेता रहा, आखिर में जब बहुत कुछ हुआ, जब गुरु नानक पातशाह राजा शिवनाभ के पास पहुंचे और उसे ज्ञान हुआ कि ये गुरु नानक हैं जिनकी मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूं, चरणों में गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चरणों में गिर कर क्या कहता है कि हे गुरु नानक पातशाह, तरस करो, मुझे ज्ञान दो, जो ज्ञान आपने सन्मुख को दिया है, भाई सन्मुख को, वही ज्ञान मुझे भी दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह मुस्कुराए और उसे ज्ञान देने लगे, ज्ञान देने लगे। कुछ समय बीता, उसे बता रहे हैं। राजा शिवनाभ ने रोक दिया, कहने का पातशाह काफी समय से आप कुछ बता रहे हो मुझे, पर हैरान हूं मैं कि मेरी समझ में रत्ती मात्र भी बात नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना साथ संगत जी। राजा शिवनाभ कहता है पातशाह आप मुझे काफी समय से ज्ञान की बातें बता रहे हैं, पर मेरी समझ में रत्ती भर भी वो बात नहीं आ रही, रत्ती भर भी नहीं। आप मुझे अनजान बालक समझकर उस प्रकार समझाओ जैसे एक मूर्ख बालक को समझाते हैं, एक एक बात करके आराम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे चाहे मैं वैसे समझाऊं चाहे ऐसे, राजा शिवनाभ बात तेरी समझ में आ ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा शिवनाभ ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह क्यों, मेरी क्या गलती है? यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने राजा शिवनाभ को जो बात समझाई वो हमारे समझने के लिए है। कहने लगे राजा, गुरु नानक पातशाह ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया जो लिखा हुआ है वहां पर, कि जब किसी को व्यापार की बात करो, किसी से हिसाब किताब की बात करो, बड़ी जल्दी दिमाग में बैठ जाती है हर एक के। किसी से वैर विरोध की बात करो, झगड़े की बात करो, बड़ी जल्दी बैठ जाती है दिमाग में और उस बारे में वो विचार भी अपने प्रकट करने लग जाता है। पर जब भी किसी से ज्ञान की बात करो वो कहता है फिर से बताओ, समझ में नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि इस मन को, ये शरीर बदलता रहता है, ये आत्मा वही रहती है, हजारों बार आती है, हजारों बार जाती है, कई प्रकार के कर्म करती है। इस मन को मैल चढ़ी हुई है पापों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों की मैल चढ़ी हुई है इस मन को, जन्मों की। वो इतनी मोटी तय हो चुकी है कि उसका प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है।
गुरु नानक पातशाह समझा रहे राजा शिवनाथ को। और जब तक ये मैल की तह नहीं उतरती पापों के, तब तक ज्ञान भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपने कई बार देखा होगा किसी किसी आदमी को समझा समझा के थक जाओ, वो बात नहीं समझता नाम जपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तह जम चुकी है, उसके दिमाग में बात जाती ही नहीं कि नाम क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा शिवनाथ ने पूछा, पातशाह मैं क्या करूं? ये जो पंक्तियां गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे जो ज्ञान दिया है, ये वाणी भी इसे प्रमाणित करती है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होवा स्याह, खनली तोती उजली ना होई, जे सो तोवण पा। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदला हो, नानक मैल न लग गई, ना फिर चोनी पा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा शिवनाथ ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह फिर मैं क्या करूं कि ये मैल उतरे मेरे मन से? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इसीलिए तो तेरे पास आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी मैल उतारनी है, कैसे उतारे? ये बहुत बार ये बात आ चुकी है। मूत पलिती कपड़ होए दे साबुन, लइया ओ तोए परिय मत पापा कह, संग ओ तो पै नावे के रंग। नाम गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जप मेरे साथ। वाहे गुरु वाहे गुरु यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने राजा शिवनाथ को वाहेगुरु मंत्र दिया और कहने लगे, जैसे जैसे तू इसे जपेगा तेरे हृदय की मैल उतरती जाएगी, ज्ञान भीतर प्रवेश करता जाएगा। साथ संगत जी हाथ जोड़कर विनती है, प्रथाएं साके महापुरख बोल दे, सांझे सगल जहाने। गुरु नानक पातशाह उपदेश दे रहे हैं राजा शिवनाथ को, पर हम ये उपदेश हम सब के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान तब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगा जब तक ये मैल नहीं उतरेगी। और मैल उतारने का तरीका है सिमरन। जब भी समय मिले, समय निकालो, एक्चुअली समय निकाल कर काम से। अमृत वेला तो छोड़ो ही नहीं, उसके अलावा की बात कर रहे हैं दास। अमृत वेले के अलावा जब जहां समय मिले सिमरन करने लग जाओ, जुड़ जाओ वाहिगुरु शब्द में, मैल उतरती जाएगी, उतरती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफर कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, यहाँ वहां के ध्यान करने से अच्छा है वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो। सफर कर रहे हो, बॉम्बे तक जा रहे हो, पाठ कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, मूल मंत्र जप लो, नाम जप लो, मैल उतरती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु ने कृपा की है, मोबाइल दिया है, ईयरफोन लगा के कीर्तन सुनो, मैल उतरती जाएगी। ये वाणी का काम है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कल के वचन याद करो गुरु अमरदास जी के, घोड़े को जबरदस्ती दवाई खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बख्शाना इतना जरूरी है अपने गुनाहों को, और बख्शने वाला तो बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए क्यों है यहाँ पे? बख्शाने। कृष्ण जी से अर्जुन ने सवाल किया था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पाप हो ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी सवाल आता है ना कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पाप हो ही ना। तो कृष्ण जी ने बड़े कमाल का जवाब दिया था, ये ज्ञान ले लो। कृष्ण जी कहने लगे, इसलिए तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ। कृष्ण जी की एक बात जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है बार बार आती है, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर इस पंक्ति को, इस लाइन को कृष्ण जी ने अर्जुन को बड़ी डिटेल में समझाया है। इसका कारण क्या है? कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखने का कारण। अगर जो आदमी नहीं कर्म हो जाता है,
फल की इच्छा नहीं रखता, ना उसे पाप लगता है ना उसे पुण्य लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कर्म करते वक्त उसे पुण्य की इच्छा नहीं होती, दान कर रहा है, उसे ये इच्छा नहीं कि इसका मुझे फल मिलेगा, बस दान इसलिए कर रहा है सामने वाले का पेट भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब अच्छे कर्म करते वक्त, कोई कर्म करते वक्त उसके मन में फल की इच्छा नहीं है, तो अगर उसका गलत भी कारण कुछ हो गया, उसका पाप भी बन गया अगर गलती से, तो उसका फल भी उसे वो भी नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कर्म करते वक्त इच्छा फल की नहीं है तो पाप भी नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अच्छा काम करते हैं तो सोचते हैं कि गुरु फल देगा, और बुरा काम करते हैं तो बोलते हैं गुरु बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करते हैं तो सोचते हैं गुरु नानक देख रहा है, चोरी करते हैं तो वो उस टाइम गुरु नानक नहीं देखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक ये बख्शाने का शब्द है। आओ दो पंक्तियां पढ़े, बख्शाएं, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि गुरु बख्शता कैसे है, किसे बख्शता है। समझो हमसे गुनाह हो गए बहुत ज्यादा, इतने गुनाह कि नरकों में भी जगह ना मिले, तो क्या फिर गुरु बख्शता है? हाँ, जिसके दर पे आए हैं वो बख्श सकता है, पर बख्शाना आ जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। आओ दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते। दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, रे दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज सरोवर की सेवा करवा रहे हैं, संगत सेवा कर रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बड़ा ही प्यारा कमाई वाला सिख, जिसका नाम भाई इतिहास में आया भाई कल्याणा, वो आया और अपने साथ एक आदमी लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याणा ने गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में माथा टेका। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी समाधि में लीन है, आंखें बंद हैं उनके, पर पहचान लिया कि भाई कल्याणा आए। भाई कल्याण से पूछा कैसे आना हुआ। भाई कल्याण चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान गया एक और आदमी इसके साथ आया है, पर वो सीधा खड़ा है, ना उसने माथा टेका है ना उसने हाथ जोड़े हैं, सीधा सीधा खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा होता नहीं, हर आदमी आके गुरु अर्जन देव जी महाराज को माथा टेकता है, पर ये खड़ा है सीधा आके, ना इसने हाथ जोड़े हैं ना इसने माथा टेका है। गुरु अर्जन देव जी महाराज पूछने लगे भाई कल्याण से, भाई ये कौन है? भाई कल्याण ने इशारा किया उसे, भाई जवाब दे। तो वो कहने लगा मेरा नाम लखू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी उसकी तरफ देख नहीं रहे, दूसरी तरफ देख के बात कर रहे हैं।
जब उसने कहा मेरा नाम लखू है, गुरु अर्जन देव जी कहने लगे भाई कीर्त क्या है तेरी, काम क्या करता है? तो क्या कहता है वो? कहता है लोगों के गले काटता हूँ, कत्ल करता हूँ और उन्हें लूट लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात सुनकर गुरु अर्जन देव जी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी तरफ आकर्षित हो गए गुरु साहब जी, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं कुछ बनकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये कह रहा है, ये कह रहा है, सच कह रहा है। यहाँ पर आकर लोग झूठ बोलते हैं आकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच कह रहा है। ऐसी बात किसी ने कही नहीं आज तक कि मैं लोगों के कत्ल करता हूँ, गले काटता हूँ। सीधा खड़ा है और कह रहा है, सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कहने लगे, उसको तो देखने लगे थोड़ी देर। कहने लगे क्या कहा, क्या करता है? कहने लगा मैं लोगों के गले काटता हूँ, कत्ल करता हूँ और उन्हें लूट लेता हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज उसकी तरफ बड़ी प्यार भरी नजर से देखने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 मिनट चुप करके गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, जरा एक बात बता लखू, क्या कभी तूने अपने जीवन में कोई नेक काम किया है? वो कहता है 2 मिनट सोचने का टाइम दो मुझे, मैं सोचूं, मुझे याद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहले कि ठीक है सोच ली। वो 2 मिनट तक वहां खड़े रह के सोचता रहा, आंखें बंद करके विचार कर रहा है कि मैंने कोई नेक काम किया है। आंखें खोल के कहता है नहीं, मैंने आज तक एक भी नेक काम नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे याद तो नहीं आ रहा मैंने किसी का भला किया हो। दूसरा सवाल गुरु अर्जन देव जी ने किया, कितने गुनाह किए हैं तूने, कितने कत्ल किए हैं? कहने लगा फिर से मुझे 2 मिनट दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे ले ले अपना समा, गिन के बता। वो सोच में पड़ गया, गिनने लगा। 2 मिनट के बाद कहने लगा पातशाह गिनती नहीं हो पा रही, अनगिनत किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर 100 हो, 200 हो, 300 हो तो मैं बता दूं, मुझे नहीं याद मैंने कितने कत्ल किए हैं। अनगिनत। जब से होश संभाली है डाकू ही बना, जंगल में से जो गुजरता है कत्ल करके उसे लूट लेता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु, ये वो बात है साध संगत जी जो बाबा आनंद सिंह जी उपदेश देते रहे, सारा जीवन ये उपदेश देते रहे। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे 100 जगह पे इंसान झूठ बोलता है, 1000 जगह पे बोलता है, फरेब करता है, ठगियां करता है, दिखावा करता है। कहते थे सब मंजूर, कम से कम एक गुरु का घर ऐसा छोड़ दो जहां पर ये सब मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना यहाँ दिखावा करो, ना यहाँ ठगियां करो। सांप भी बिल में जाता है तो सीधा होके जाता है, सारा रास्ता टेढ़ा होके चलता है। कहते थे गुरु के आगे इंसान सिखा के सच बोल दे, एक बार सच बोल दे। हम यहाँ पर आते हैं कुछ बनकर आते हैं, मैं यहाँ पर कीर्तनिया बन के आता हूँ, कोई यहाँ पर सेवादार बन के आता है, कोई बिजनेसमैन बन के आता है, कोई नेता बन के आता है। जो कुछ बन के आता है वो खाली चला जाता है। गुरु का ध्यान उसकी तरफ ही जाता है। ध्यान से बाणी की पंक्तियां सुनो साध संगत जी। तरस पया मह रामत होई सतगुरु सज्जन। फिर से बोलिए, तरस पया मह रामत होई। ये कुदरत का कानून है, ये कानून है, ये जो गुरबाणी कि पहले गुरु को तरस आता है, फिर उसकी मेहर होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चाहते हो गुरु हमारे गुनाह बख्श दे तो पहले उससे तरस की निगाह लेनी पड़ेगी। उसे तरस आएगा तो वो बख्शेगा ना। हम जब कुछ बन के आएंगे, पातशाह मैंने इतने पाठ किए, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतने लोगों को जोड़ता हूँ, ये बन के आते हैं यहाँ पर, उसे तरस कैसे आएगा? तरस तो आता है पापी पर। तरस आया गुरु नानक पातशाह को सज्जन ठग पर कि इतने कत्ल कर रहा है, इसे पता नहीं क्या कर रहा है। तरस आया गुरु नानक पातशाह को भूमि चोर पर। तरस आया गुरु नानक पातशाह को कौड़े राक्षस पर। हमारे जैसे चालाक आदमियों पर तरस नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस लेना है तो वो बन के आना पड़ेगा, अपने पापों को आगे रखना पड़ेगा। पातशाह मैं बहुत पापी हूँ, मेरे पे भी तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भूल से यहाँ पे ये मत कहा करो। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, गुरु को मत गिनाया करो कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। गुरु को अपने सिर्फ और सिर्फ गुनाह गिनाया करो। मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे कि रात को सोते वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कमरे में चला जाया कर और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे बैठकर अपने पूरे दिन की एक एक बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बताया कर कि पातशाह आज मैंने फलाना गलत काम किया है, बख्श दे। पातशाह आज मैंने ये गलत काम किया है,
बख्श दे, अपने गुनाह गिनाया कर क्योंकि उसे तरस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरस आएगा तो मेहर होगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज को उस पर तरस आ गया, ऐसी निगाह से देखा तरस प्या में है रामत हुई। वो नदर कर दी नानक नदरी नदर निहाल, जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतनी प्यार भरी नजर से उसकी तरफ देखा कि उसके भीतर, डाकू के भीतर जिसने अनगिनत कत्ल किए, उसके भीतर सिमरन शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात बताइए, यहां पर सारा जीवन बीत गया, सिमरन शुरू नहीं होता हमारा। जन्मों की मैल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक दृष्टि से निकाल दी। कारण क्या? गुरु के सामने आके सच बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर आकर झूठ नहीं, यहां पर आकर फरेब नहीं, क्योंकि जो पाप बाहर करेंगे यहां पे बख्शा लेंगे, जो पाप यहां करेंगे कहां बख्शाओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी नदर कर दी, वो नदर गुरु नानक ही बैठा है, अभी भी कर रहा है, पर उसको हम पे तरस तो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ तरस मांग ले। दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ। डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ। बाबा अनंत सिंह जी के गुरु बाबा मार नाम सिंह जी बुच्चो साहब वाले, बड़ी प्यारी सी घटना है ये भी। वो तो ऐतिहासिक थी, ये अभी अभी की घटना है। इनके पास अंग्रेजों के जमाने के समय की घटना है ये। डेरे में कुछ लोग आ गए, 5-7 लोग हैं, उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी है। भूख लगी थी, खाना खाने आ गए कि डेरे में भोजन मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुषों ने अपने पास बुला लिया, भाई कौन आए हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जाना पड़ा सामने। वो दर्शन करने नहीं आए थे, वो भोजन खाने आए थे, पर महापुरुषों ने अपने पास बुलवा लिया। अंतर्जामी बाबा महार नाम सिंह जी, इतनी कमाई साध संगत जी, इतनी कमाई कि महापुरुषों को रास्ता दिखाने के लिए वो महापुरुष आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के महापुरुष बाबा महाहर नाम सिंह जी। सब जानते हैं ये कौन है। उनसे बातें कर रहे हैं कि क्या काम करते हो। सब झूठ बोल रहे हैं कि ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे, जमीन देखनी थी। ये एक छोटी लड़की 14-15 साल की वहां बैठी थी उनके साथ। बाबा महार नाम सिंह जी ने उससे पूछा, भाई क्या काम करते हैं? सब उसे घूरने लगे उस लड़की को कि चुप रहना, पर वो लड़की बोल पड़ी कि हम चोर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब उसे घूरने लग गए, तूने क्या किया? महापुरुषों के सामने बता दिया कि हम चोर हैं, चोरी करने आते हैं।
तो बाबा महाराम सिंह जी उससे पूछते चोरी कैसे करते हो? कहने लगे हम पहले किसी साहूकार के घर के बाहर पहरा लगा लेते हैं, ध्यान देते हैं, कभी वो आते हैं कभी ये जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके फिर जब वो घर में नहीं होते तो घर में चोरी कर लेते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी साथ में आए थे परिवार उसे घूर रहा है, पर वो लड़की ने महापुरुषों को सच कह दिया, सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। कहने लगे तेरा नाम क्या है? कहने लगे सैंसण। सैंसण नाम बताया उसने अपना। बाबा उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी, लोहे की रॉड कह लीजिए, छड़ी कह लीजिए। बाबा महाराम सिंह जी प्यार से कहने लगे बेटा अगर ये छड़ी तू हमें दे देगी हम तुझे महारानी बना देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये छड़ी हमें दे देगी हम तुझे महारानी बना देंगे। उसने उसी वक्त छड़ी उन्हें दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोलापन, सबने झूठ बोला, इस लड़की ने सच बोला। ये बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद ये पूरा परिवार चोरी करते पकड़ा गया। उस समय राजा महाराजों का जमाना था। जेल में डाल दिया गया, काफी समय जेल में रहे। एक दिन राजा के मन में आया, पुराने जमाने में राजा जब उनका जन्मदिन होता था ना तो वो जेलों में जाकर कई लोगों को रिहा कर देते थे खुशी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जेल में चक्कर मारने गया, देखा इतनी खूबसूरत लड़की जेल में, मोहित हो गया उसके ऊपर। कहने लगा मुझसे शादी करोगी? वो तैयार हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसकी शादी राजा से हो गई, महारानी बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो सोच रही है, बैठी, आंखों में आंसू है कि महापुरुषों ने कहा था छड़ी मुझे दे दे तुझे महारानी बना दूंगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, वो महारानी कैसे बनी? छड़ी देने से नहीं, उसने सच बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के आगे जाके सच बोल दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने भाई लखू ने सच बोल दिया कि मैं डाकू हूं। डाकू से संत बना दिया। ये भाई लखू आगे चल के इतनी कमाई वाला बना। साथ संगत जी, इसी ने कहा था कि बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी अवस्था ये हो गई भाई लखू डाकू, जिसने ना जाने कितने कत्ल किए, गिनती नहीं है। इसने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहने लगे अब आवा कच्चा ही होगा, क्योंकि ये इसकी इतनी कमाई है, ये हमारा भगत है, भगत का कहना हम टाल नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था आवा पक्का निकलेगा, पर आवा कच्चा निकला, क्योंकि भाई लखू ने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मुंह है। ये वो सिख, क्योंकि गुरु के आगे सच बोल दिया। यहाँ पर अगर हमने अपने गुनाह बख्शाने हैं तो गुरु नानक के आगे सच बोलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर यहाँ से कुछ लेना है साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के वचन, ये वचन लगभग सबके, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के, जितने बड़े महापुरुष हुए सबके ये वचन है। अपना रुतबा, अपना ओहदा जोड़े घर में उतार कर अंदर आया करो। यहाँ पर कुछ बनकर आओगे, कुछ भी नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ पर भिखारी बन के आओ, पापी बन के आओ, अपने गुनाह गिनाओ, माथे टेकते वक्त पातशाह में अत का गुनहगार, अत का। ये शिक्षा लेनी है तो भाई गुरदास जी के जीवन से ले सकते हैं। भाई गुरदास जी कहीं से गुजर रहे हैं साथ संगत जी। भाई गुरदास जी किसी ने कह दिया, क्योंकि भाई गुरदास जी इतनी कमाई साथ संगत जी कि उनके चेहरे पर इतना जलाल, जो नाम जपते हैं उनके चेहरे पर एक जलाल आ जाता है। उनके दर्शन करके मन को ठंड प्राप्त होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी होती है महापुरुषों की। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मिलने से मन को शांति आ जाए, जिसके दर्शन करने से मन शांत हो जाए, ये पहचान है कि उसके भीतर नाम चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहीं से जा रहे हैं, मुंह पे जलाल है। किसी ने पूछा ये कौन है, तो दूसरा कहने लगा ये महापुरुष हैं, बड़ी कमाई वाले। भाई गुरदास जी ने ये बातें सुन ली, उनके कानों में पड़ गई। वहां पर उन्होंने ये कविता उच्चारण की, श्रवण कीजिए।
ध्यान से सुनिए भाई गुरदास जी क्या कह रहे हैं। ऐसी कोई गाली नहीं जो भाई गुरदास जी ने अपने को ना दी हो इस शब्द में। इस दुनिया में ऐसी कोई गाली नहीं बनी जो भाई गुरदास जी ने अपने को ना दी हो। कहने लगे मुझे संत कह रहे हो कि इसके मुंह पे जलाल है। कहने लगे मैं ये हूं अपराधी गुनहगार हूं बेमुख, गुरु से बेमुख हूं मैं, मंदा हूं मैं, बुरा हूं मैं, चोर हूं, यार हूं, जुआरी हूं मैं, दूसरों के घर को लूटने वाला आदमी हूं मैं, पर कर जो हंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वासघाती अकीर्त घन मैं को न रखंदा, सिमर मुदीदा टाडियां सतगुर बख्शंदा। मुझे गुरु ही बख्शे तो बख्शे, वरना मुझे नरकों में भी जगह ना मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी वो जिनकी वारें हरमंदिर साहब में पढ़ी जाती है, जिनकी बाणी को कुंजी का खिताब मिला है, वो भाई गुरदास जी अपने मन की अवस्था देखे कहां रखे हैं कि मैं इतना गुनहगार हूं और हम एक टके का ज्ञान नहीं हमें, और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे। एक बड़ी ही ज्ञान की बात है। इस बात को मान लो, इस बात को समझ लो, जीवन बदल जाएगा। शॉर्ट छोटी सी एक बात है। जब चीरहरण हुआ था ना द्रौपदी का, चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, जब उसके तुरंत बाद जब कृष्ण जी द्रौपदी से मिलने आए ना, तो द्रौपदी दरवाजा नहीं खोल रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से मिल नहीं रही थी, पर जब कृष्ण जी से मिली तो सबसे पहला वचन कृष्ण जी ने द्रौपदी से पता क्या कहा? ये ज्ञान है, ले लो। कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा सबसे पहला काम ये कर कि दुर्योधन को माफ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्रौपदी हैरान कि उसे माफ कर दूं, उसे जिसने मेरी इज्जत को सारे राजमहल सबके सामने नीलाम करने की कोशिश की, उसे मैं कैसे माफ कर दूं? कृष्ण जी कहने लगे उसने जो कर्म किया उसकी सजा उसे अपने कर्म के हिसाब से मिलेगी, पर तू उसे भीतर से माफ कर दे। कह दे मैंने दुर्योधन को माफ किया, भीतर से, ऊपर से भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्रौपदी कहने लगी मैं कैसे कह दूं? कृष्ण जी कहने लगे मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मुझे उस पे तरस नहीं आ रहा, मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। क्योंकि अगर तूने उसे माफ नहीं किया, अंदर आग तेरे जलते रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशानी में तू रहेगी, एकाग्रचित्त तू नहीं हो पाएगी, परेशान तू रहेगी। माफ कर देगी, तेरा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारे सबके मन अशांत हैं, क्योंकि हर एक, देखिए वाणी कहती है जब तारे को बैरी मीत तब लग निहचल नाही चीत। जब तक मन में कोई दुश्मन है, कोई दो मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त, ये चल रहा है, वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तब तक तेरा मन एकाग्रचित हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। एकाग्रचित करने के लिए मन में से द्वितीय भाव निकालना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हम किसी को दुश्मन समझ के बैठे रहेंगे, उसके बारे में बुरा सोचेंगे, तब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपके साथ बुरा किया हो, माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। मन शांत हो जाएगा, मन नाम में जुड़ना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पकड़ कर बैठे रहते हैं, किसी ने बुरा कर दिया उसे लेकर बैठे रहते हैं, बद दुआएं देते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, मन नाम में नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सीधी सी बात है, वही बाबा नंद सिंह जी के वचन।
चाहते हो गुरु तुम्हें माफ कर दे, तुम्हारे गुनाह बख्शे, तुम्हें दूसरों के गुनाह बख्शने होंगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ इन पंक्तियों को गाओ नहीं, पुकारो सारी संगत। एक बार दास, एक बार सारी संगत। दया करो किछ मेहर पाओ, दया दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, बाबा नंद सिंह जी की अरदास, ये अरदास किया करते थे पातशाह। जैसे भूमि चोर, सज्जन ठग, कौड़े राक्षस के गुनाह नहीं देखे, हम भी उसी पार्टी के आदमी हैं, हमारे भी गुनाह मत देख, बख्श दे, हमारे भी गुनाह मत देख, हम उससे भी बड़े पापी हैं, हमें भी बख्श दे। वो बख्शने के लिए बैठा है साथ संगत जी। बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आते हैं, अमृत वेले का समय हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, संगत जुड़ी हो नाम जपने वाली। कीर्तनिया इसलिए कीर्तन ना कर रहा हो कि उसे पैसा मिलेगा, माया मिलेगी, धन मिलेगा। कहते थे 100% सवाल ही नहीं उठता कि गुरु नानक ना बैठा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक बैठे हैं, गुरु नानक बैठे हैं। ये पुकार उससे करो, पातशाह बख्श दे, ताकि भीतर नाम का किनका प्रवेश कर जाए, ज्ञान प्रवेश कर जाए। और सिमरन जो नजर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जो नजर आपने भाई लखू पर की, वो नजर आज हम पर भी कर दो। दया करो किछ मेहर पाओ, दया किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, संगत सारी दया। डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, जेता समुद्र सागर नीर परिया, जेता समुद्र सागर नीर परिया, ते अवगुण हमारे, ते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, मेहर पाओ, मेहर पाओ, मेहर पाओ, मेहर पाओ। गुरु नानक जी
डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, दया करो किछ मेहर पाओ, 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 दया डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, दया करो किछ मेहर पाओ, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज छुट्टी थी तो मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लगा लिया, जितना लाभ उठा सके उठा लें। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये थोड़े थोड़े लोग उठने शुरू हो जाते हैं, नहीं तो मैं तो 7 बजा दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन नहीं करता, इतनी संगत देखकर मन शुक्राने से ही जुड़ जाता है गुरु के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाछा तरस किया है, इतने लोगों को तूने अमृत वेले उठाया, इतने लोगों को। क्योंकि ये सच है, जब तक वो ना उठाए कोई नहीं उठ सकता। अमृत वेले नहीं याद आता कि भाई साहब ने कहा था उठना है, वो तो गुरु नानक की बाँह पकड़ कर उठाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक ने कितनों की बाँह पकड़ी है, यह देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। एक अरदास जरूर किया करो मन में, पातशाह जिस तरह से हम पर कृपा की है, तरस किया है, उठाया है, जो अभी तक सोए हुए हैं उन पर भी तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हें नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं, उन्हें नहीं पता हम क्या पा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ धर, इच्छा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चलन बन रहे। सेवक से
मार मारिए आप हाथ जय करिए मरण काल का त्रास करिए हो जो सदा हमारे बच्चा से पुत्र करे और चराग में राखण हमारे साथ संसार के हरे दिन बंधु संके हंगा तमो पुरी जो दस तंता काल बाय ब्रह्मा पुत्रा काल बाय चतुरा काल बाय गणपति प्रकाश सकल काल का किया तमाम जन काल जोगी शिव के वेद राज ब्रह्मा ज्योति जन काल सब लोग सवारा नमस्कार है दाय हमारा जन काल सब जगत बनाए देव दैत्य से पुजारक आदम देखे अवतारा सोई गुण संज्ञो हमारा नमस्कार तुझे को हमारी सब पूजा जन आप सोने जिनकर को सब गुण शक्ति हो सुकरण को बल मोहम्मद की हो गड़गड़ के अंदर की नाट बड़े बड़े की वीर जान चीटी ले गुजर है भोला आप के पत्थर फूला चंदन तो पाए दे की सुपाए साधन के सुखे दे की पीठ जाने बड़गड़ के बड़बड़ के जाने जब कर करा कर तारा बजा कर तब दे पारा चव्या कर तो कबू तुम्हें मत दे कर सब देते बड़े श्रेष्ठ सरकारे आप आपने कोई उचारे तुम सभी ते है विराज जान वेद वेद यार मन का दुकान नाम आदि अनाद संग का पूर्ण जात वेदा जागो देव नभाव वेदा जागो भगवान हनुमान मूर्त वेद जान महादेव को कैसा संकार का चिंतन पे आप अपनी है जेती वन में में जेती तुमरा खंड है सारा घर सजा सारा एक रूप हटो स्वरूप रंग रावे उपार निर्जय जय जिनी ऊपर खान बहुर जी कौन बोल राजा बैठा कौन सब संगल गड़ा सभी सिद्ध खाए भगवान का स्वरूप से बहुर जाने तुम करो शेख बार शेख करो दुष्ट देव भगत पाता सकल प्रदेश करो रण गाता दे असुरता सरणी परे तिनके दुष्ट कर मरे मुक्त जब पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सकारे जो कर कोई बात है काटे बाल नहीं है अच्छा विद्या सफला दुष्ट निष्ठ रहे दुर्गाला के पास संजाय रहनो ताके दाम तरक नो हरे बोले सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट दास के कोई एक बार तुम्हें सवारा काल पास्ते ताहि तुम्हारा जिंदर नाम तिहार आधार दुष्ट लोग तेरा खड़ के में सर तिहारी आप हाथ दे लो हमारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट लोग दे लो बचाई कृपा करी हमारी माता ग्रंथ करा पूर्ण सुराता गिर सकल दे को हटा दुष्ट लोग ने को से कर ला सिर तुझा पै दयाला पूर्ण करा कर काला दुख न से यार कोई अड़े सुने दुख जो जाए सुरस ना पावे सुने मूड चित लाए करता आवे दुख लहत पौनिक न दिन नर के रहे और जागी एक बार तो कोई को कहे दुख दर्द पौनिक न दिन नर के रहे और जागी एक बार तो कोई को कहे अनंत माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सह सिद्धि मनुष्य अवधान राग द्वार पर शब्द आवड़े आई शब्दों का वो हरि के मन में बसाया कहना कहना को सतगुरु में पाया हे मन मेरे तू सदा हो हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार कर तेरा कर सुधारना सुना सो कमन विसारे कहना मन मेरे सदा हो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सारा तेरी नाम अनुसार है नाम तुमके मानो से आवाज शब्द रे कहना सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे सदा नाम राया हारो सब गवाया परेशान सुमणे वसे आज इच्छा सब बुझाया सदा भगवान की जागर बेटो जिसकी है बढ़िया कहना सुनो समझो शब्द रो प्यार सजा नाम मेरा हजारों वाजे पंच शब्द कर सभा के सभा की शब्द वाजे खलाज करता रिया पंचदूत दिवस की दिवार तुम्हारे अनुकरण पाया तुम को से ना मार के लागे कहना तस को अनुकरण वाजे हम सुनो मत पागियो सुनो पूरे पार न प्रपाया उतरे सब सूरे दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची वाणी संत साज पहे सच्चे पूरे गुरते जानी सुनते प्रीत कहते कोई सत्य अब पूरे वचना ने गुरु चरण लागे वाजे अन पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता देवसराज विदाई दाया नीला सकल जगे अमलियाया वाजे धर्म दूर कविया को अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम आया प्रेम सत्कार कान के तुझे लेके दी शुद्धि काल उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला जाग सवेरे जी बना तेरे नाम जपन दा वेला उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला जाग सवेरे जी बना तेरे नाम जपन दा वेला नाम जपन दा वेला नाम जपन दा वेला नाम जपन दा वेला नाम जपन दा
उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दूसरा दवाई दाया खेले सरत ठगियां बुराइयां वाचन कर्म दूर करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम पे आया गए मुक्तार नानक ते मुझले कहते छुट्टे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी गुरुजी शुक्राना आपका कैसे करूं, सब कुछ देते हो और कुछ नहीं लेते हो, सच्चे दिल से जो तुमको चाहे उसकी झोली भर देते हो। शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी 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 हाँ गुरुजी सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब कुछ नहीं है खोना है, काहे की चिंता
गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी 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 आ गुरुजी शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।